رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے کہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نامعلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا۔ اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑا استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں؟ میں آپ کو ایک انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خوش کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا؟ پتا چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں۔ نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے، آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں۔ اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے، اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے۔
आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए जो कब्ज की वजह से हो या मौरूसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें। हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचलकर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं। दिन में 2 मरतबा। फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत, जिंदगी आपका साथ। पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिसमें मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारी जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूं वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये 2 लफ्जों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर से जो मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे गिलगित, हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से, अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ये हैरत अंगेज, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसके हैरत अंगेज फ़वाइद और फ़ज़ाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं। वो सब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज़ क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 कप पी कर तो देखूँ। खैर मैंने 1 कप पी लिया, मगर ज़रूरत से ज़्यादा पिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने 1 कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फ़ौरन ताकतवर हो जाऊं और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तमीज़ से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज़ का फ़ायदा बताना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फ़ायदा नहीं है जो हम ख़ास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पे तहकीक है, साल मेरी ज़िंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है।
सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ पहाड़ों का अर्क है, और हर पहाड़ से नहीं निकलता, एक खास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निज़ाम चलता है और वहां से एक गोंद निकलती है, उस गोंद का नाम सलाजीत है। और इसके फायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंजा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी, 1980 की बात है, वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है, इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हज़ारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल, जिस्मानी कमजोरियों, जोड़ों के दर्द और तवानाई को बढ़ाने में मुफीद समझा जाता है। सलाजीत में मादनियात और पौधों के अज्जा शामिल होते हैं जो हज़ारों साल तक चट्टानों में दबे रहते हैं। गर्मी में जब ये पहाड़ की सूरज की तपिश पड़ती है तो ये चट्टानों की दराजों से एक चिपचिपे मादे के तौर पर गोंद की शक्ल में इसे फिर निकलते हैं, फिर इसे जमा करते हैं। ख़तरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको चढ़ने का, उनको उतारने का फ़न आता है। और मैंने अर्ज़ किया कि ये गिलगित बिल्तिस्तान उन पहाड़ियों में होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो। इसके बाद एक पूरा इसका एक प्लांट, इसकी सफाई, इसका निज़ाम, फिर इसकी बाकायदा सर्टिफिकेट और फिर असल सलाजीत की निशानदही, ये सारा वो एक निज़ाम है जो सलाजीत के साथ, सलाजीत की कैफियतों के साथ होता है। एक बात मैं आपको खसूसी बताऊं, वो ये है कि सलाजीत हमारी असल में जिस्म, पट्ठे और आसाब, दिमागी कमज़ोरी और तवानाई इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद करती है और जिस्म को, आसाब को और मजबूत करने में मदद करती है, दिमागी ताकत को। आप एक चीज़ महसूस करें, जो इलाके सलाजीत से मुंसलिक हैं, जिन इलाकों में सलाजीत है, वहाँ के लोग बीमार नहीं होते। अब तो वो ज़िंदगी ना रही, मसनूई ग़िज़ाएँ पहाड़ों के आखिर तक पहुँची और उन ग़िज़ाओं ने हमारे जिस्म को, हड्डियों को खोखला कर दिया। वरना ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ने रखी वहाँ है। और आप हैरान होंगे, वहाँ रखी है जहाँ चोटें लगती हैं, जहाँ पहाड़ से इंसान गिरता है, जहाँ पत्थर से गिरता है। ज़ाहिर है पहाड़ी ज़िंदगी है, तो ये चोट के लिए, हड्डी टूटने के लिए, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए, आसाब को मजबूत करने के लिए, और जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, बर्फ़ का एहसास तक न हो, उसके लिए कुव्वत ख़ास के लिए भी है। लेकिन हम सिर्फ इसे कुव्वत ख़ास के लिए समझते हैं, ये और हैरत अंगेज़ हमारे जिस्म के लिए मुफीद है। आए हम इसको हम मिक़दार खुराक बताते हैं कि मिक़दार खुराक क्या है। चने के बराबर गर्म दूध के साथ मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें या उसमें मिलाएं, लेकिन चूंकि मवाद कड़वा होता है, आप गोली की तरह बना के इसको गर्म दूध के कप से, गिलास से या एक प्याले से ले लें। 50 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 माह या ज़िंदगी का मामूल, लेकिन मौसम सरमा में, और नौजवान हफ्ते में 1 या 2 बार। बच्चे इस अभी फ़िलहाल इस्तेमाल ना करें, हाँ वो बच्चे इस्तेमाल करें जो पहाड़ों में रहते हैं, मौसम सरमा में ही इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ना करें। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं और कोई ऐसे नुकसानात नहीं हैं। हाँ, वो सलाजीत जिसमें पत्थर की मिलावट हो या किसी और चीज़ की, वो तो वैसी सेहत के लिए हर वो चीज़ जो नुकसानदेह है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है और हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, वो पहाड़ों में इस्तेमाल करें, यहाँ थोड़ी मिकदार में ना करें तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी ये जिस्मानी तौर पे, आसाबी तौर पे और पट्ठों के लिए एक अनोखा टॉनिक है, कुदरत ने दिया है, फितरत ने दिया है, और फितरत का ये टॉनिक हैरत अंगेज़ है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत ख़ास के लिए एक चीज़ भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, वो आपकी उन कमज़ोरियों के ख़त्म करने में जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज़ है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने, वो चीज़ें सिर्फ 4 हैं। तुख्म रिहान 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इसमें सिर्फ तुख्म रिहान नहीं कूटना, कलवंजी, मिश्री और अकर करहा को आप पाउडर बना लें। ये चारों चीज़ें मिक्स कर लें और ये आप दवा तैयार है। यानी तुख्म रिहान नहीं कूटें, बाकी चीज़ों कूट लें और कूट के इसका एक पाउडर बना दें। दिन में सिर्फ 2 दफ़ा, सुबह शाम या 1 दफ़ा आप दूध के हमरा इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत लाजवाब चीज़ है और इंशाल्लाह आपको हैरत अंगेज़ कुव्वत का एहसास होगा, हर किस्म की कमज़ोरी ख़त्म होगी और वो कमाल हासिल होगा जो आप हर ताकत की दवाई भूल जाएंगे। यकीन जानिए ये बहुत कमाल टोटका है। अकर करहा एक जड़ी, एक बुनियाद है, एक रूट है, एक पौधे की जड़ है। तुख्म रिहान वो है जो जन्नती पौधा है। जन्नत में सबसे पहले जब जन्नती जाएगा
تو ریحان کا پودا ہوگا، روح و ریحان و جنات النعیم، جنت کا پودا ہوگا. اور بہت کمال نسخہ ہے، بہترین. کلونجی یہ نبوی غذا ہے، نبوی دوا ہے، بہت ٹوٹکا لاجواب ہے. اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، قوت خاص کے لیے اس کو استعمال کیجیے. اور آج امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ سلاجیت کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. سلاجیت واقعی ہماری جسم کی ضرورت ہے. ہم نے فطری چیزیں چھوڑ دی اور محروم ہو گئے. آج کے بعد فطری دنیا کو تلاش، فطری چیزوں کو تلاش کریں.